ఉత్తరాది నేతలతో పాటు దక్షిణాది నేతలు కూడా టీవీ9 సమ్మిట్ లో పాల్గొన్నారు. కర్ణాటక రాష్ట్రాన్ని దేశానికి గ్రోత్ ఇంజిన్ గా టీవీ9 కాంక్లేవ్ గుర్తించడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు కర్ణాటక సీఎం బసవరాజ్ బొమ్మాయి. మైసూర్ మహారాజుల కాలం నుంచి పారిశ్రామిక రంగంలో తమ రాష్ట్రం దేశంలో టాప్ లో నిలిచిందన్నారు బొమ్మాయి. बसवराज बोमई को कर्नाटक की कमान सौंपी गई। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर बसवराज बोमई राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। शुरुआती दौर में जनता दल के साथ सियासत शुरू करने वाले बसवराज बोमई 2008 में बीजेपी में शामिल हुए और 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्रिमंडल के अहम सदस्य रहे। बतौर मंत्री बसवराज बोमई ने कर्नाटक में 100% पाइप सिंचाई परियोजना को लागू किया, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई। कोरोना काल में बसवराज बोमई के काम की तारीफ न केवल प्रधानमंत्री बल्कि कई राज्य सरकारों ने भी की। फिलहाल बसवराज बोमई दक्षिण भारत में बीजेपी के भगवा अभियान को आगे बढ़ाने के मिशन पर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी सहयोगी और दिस सेशन मॉडरेटर सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सुमेरा खान टू कम ऑन द स्टेज विद आवर नेक्स्ट सेशन गेस्ट कर्नाटक सीएम श्री बसवराज बोम्मई। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें मंच पर। This conclave has recognized Karnataka will be a part of a growth engine for the country itself speaks volume. We have got a very long history of development with technology. We have highest number of public sectors in niche areas, in aerospace, in defense, and in manufacturing sector. Prior to this, the benevolent Maharaja of Mysore will not believe that we had industries right from steel and cement to the ink. Therefore, we have been an industrialized state for a long time. And the new technologies which were put to use all over the world were tested in Bangalore, in India. Therefore, the highest number of R&D centers in the niche area, including genomics, biotechnology, artificial intelligence, so on and so forth, are in a large number in the Bangalore. In fact, Bangalore is one unique city which can boast of 400 very, very high-tech R&D international centers in both public and private sectors. 400, no other city in the world, forget India, no other city in the world has. So there are a lot of interactions are happening without much noise. New products have been developed, new applications have been developed, and this is a buzzword all over the world. రాజకీయాలతో పాటు తన వ్యాఖ్యలతో నిత్యం వార్తల్లో ఉండే కేరళ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ కూడా టీవీ9 గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో వర్తమాన రాజకీయాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. जहां पे किताबें पढ़ाई जा रही हैं, वहां पे वो कानून पढ़ाए जा रहे हैं, वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो सल्तनत के जमाने में लिखी गई थी। और सल्तनत के जमाने में जो किताबें लिखी गई, मदरसों में कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है? कानून कुरान, मतलब वो तो इंसानों के लिखे हुए हैं, उसमें तो यही सारी बातें लिखी हुई। ध्यान रखिए, भारत भी सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 14 साल की उम्र तक के बच्चे का बुनियादी अधिकार है कि उसको किसी प्रकार की स्पेशल एजुकेशन नहीं दी जा सकती, उसको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देनी पड़ेगी। हम उसको अनदेखा कर रहे हैं। हम अलाउ करते हैं 5-6 साल की उम्र के बच्चों को लाके उनका इंडोक्ट्रिनेशन होता है। तो जब अगर हम सही शिक्षा नहीं देंगे तो इन सब चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें ज्वाइन మాజీ కేంద్ర మంత్రులు ఆనంద్ శర్మ, రవిశంకర్ కూడా టీవీ9 సమ్మిట్ లో విలువైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు. కరోనా కాలంలో 100 దేశాలకు వ్యాక్సిన్లు ఇచ్చిన ఘనత భారత్దే అన్నారు రవిశంకర్ ప్రసాద్.
వ్యక్తి పూజ మంచిది కాదని, మతాన్ని కించపరిచే వ్యాఖ్యలు భారత ప్రతిష్టను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దిగజార్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు కాంగ్రెస్ నేత ఆనంద్ శర్మ. कोविड आया तो भारत ने 100 से अधिक दुनिया के देशों को अपना वैक्सीन बना के भेजा कि नहीं भेजा? आप मुझे बताइए. अगर यूक्रेन में लगभग 18-20 हजार भारत के बच्चे फंसे हुए थे मेडिकल पढ़ने वाले, तो उनको रेस्क्यू किया कि नहीं किया? और एक समय तो ऐसा हुआ कि मोदी जी ने पुतिन से भी बात किया और जेलेंस्की से भी बात किया, आग्रह किया भैया युद्ध जरा रोको, हमें अपने बच्चों को निकालना है. यमन से निकाला कि नहीं निकाला? मालदीव्स में अगर पानी की सप्लाई की जरूरत थी तो पानी भेजा कि नहीं भेजा? आज दुनिया के झरोखे में भारत की आवाज सुनी जाती है, और ये तभी सुनी जा पा रही है क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लोकप्रिय नेता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, और अगर भारत की सुरक्षा पर कोई आंख दिखाता है, चाहे बालाकोट हो या उरी हो, तो जवाब देने की क्षमता भी है. సంస్కరణలకు తమ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందన్నారు కేంద్ర మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్. గ్రామీణ పరిశ్రమలకు ఎంతో ప్రోత్సాహం కల్పిస్తున్నట్టు చెప్పారు. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कर्नाटक की कमल क्रांति में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा. जुलाई 2021 में बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई को कर्नाटक की कमान सौंपी गई. पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर बसवराज बोम्मई राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं. शुरुआती दौर में जनता दल के साथ सियासत शुरू करने वाले बसवराज बोम्मई 2008 में बीजेपी में शामिल हुए और 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्रिमंडल के अहम सदस्य रहे. बतौर मंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में 100% पाइप सिंचाई परियोजना को लागू किया, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई. कोरोना काल में बसवराज बोम्मई के काम की तारीफ न केवल प्रधानमंत्री बल्कि कई राज्य सरकारों ने भी की. फिलहाल बसवराज बोम्मई दक्षिण भारत में बीजेपी के भगवा अभियान को आगे बढ़ाने के मिशन पर हैं.